अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्लास 9 इंग्लिश की 2025 की न्यू बुक, इसका चैप्टर नंबर 3 डैफोडिल्स, जो कि एक नज़म है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए इस नज़म के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज के सवालों को सोल्व करूंगा। तो आपसे बस एक छोटा सा फेवर चाहिए, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन पेज नंबर 34 जैसे आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन आंसर्स हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला सवाल है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, आप ये नोट करें। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स एबिलिटी टू अपलिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट. The poet reflects on how the sight of daffodils brought joy and tranquility, which lingered in his memory as a source of peace. क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आपको नजर आ रहा है, डिस्क्राइब द सेटिंग वेयर द पोएट सो द डैफोडिल्स. हाउ डज दिस सेटिंग कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम. इसका आंसर नोट कर ले प्यारे बच्चों. द पोएट डिस्क्राइब्स अ सेटिंग बाय अ लेक beneath trees where thousands of golden daffodils are fluttering and dancing in the breeze. The picturesque and scenic setting creates a joyful and uplifting mood, emphasizing the harmony between nature and human emotions. क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों आपका, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स. व्हाट इमेजिनरी डज ही यूज टू ब्रिंग देम टू लाइफ. द पोएट डिस्क्राइब्स, इसका आंसर नोट करें. द पोएट डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स as a host of golden daffodils fluttering and dancing in the breeze. He uses imagery such as continuous as the stars that shine to suggest their vastness and brilliance. The daffodils are personified as cheerful dancers, making them vivid and lively. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका प्यारे बच्चों, इस नज़म का आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ पर्सनिफिकेशन इन द पोएम. द पोएट, इसका आंसर है, द पोएट पर्सनिफाइज द डैफोडिल्स बाय डिस्क्राइबिंग देम एज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज एंड टॉसिंग देयर हेड्स इन द sprightly dance. This gives the flowers human-like qualities, making them appear joyful and full of life. क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पोएम स्कीम ऑन द पोएम्स रिदम एंड फ्लो. इसका आंसर नोट करें. द राइम स्कीम ABCC क्रिएट्स मेलोडियस एंड हार्मोनियस फ्लो, mimicking the gentle and rhythmic movement of the dancing daffodils. This enhances the poem's cheerful and soothing tone. Question number 6. Why do you think the poet describes the daffodils as Joconde company? What impact do they have on him? इसका आंसर नोट करने वाले बच्चों, the poet calls the daffodils Joconde company because their vibrant and lively presence fills him with happiness. They lift his spirits and bring him joy, providing a cheerful companionship that lingers in his memory. Question number 7. The poet mentions the bliss of solitude. What do you think he means by this, and how do the daffodils contribute to this through their feeling? तो यहाँ से नोट करने पर बच्चों आप, that bliss of solitude refers to the joy and peace that the poet feels when he reflects on the memory of the daffodils while alone. The daffodils contribute to this feelings by offering a source of solace and inspiration, making solitude a time of inner happiness. क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है. नज़म का, इमेजिन यू आर द पोएट रिविजिटिंग द सेम प्लेस आफ्टर मेनी इयर्स. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर फीलिंग्स एंड द सीन एज इट माइट अपीयर नाउ. तो इसका आंसर नोट करें प्यारे बच्चों. एज आई रिविजिट द लेक आफ्टर मेनी इयर्स, a wave of nostalgia washes over me. The daffodils are still there, swaying gently in the breeze, their golden hue as radiant as ever. The setting is unchanged, yet it feels more profound, as if time has preserved this tranquil paradise just for me. My heart fills with the same joy I felt years ago, and I am reminded of how nature's beauty is timeless, a constant source of peace and inspiration. पेज नंबर 34 पे आपका एक सवाल है, बी चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन. 10 एमसीक्यू से आपको पूछे गए हैं. हर एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं, तो आपने सही आंसर को चूज करना है. तो पहले का आंसर है प्यारे बच्चों बी, द ब्यूटी ऑफ नेचर.
दूसरे का आंसर आप नोट कर लें, अ क्लाउड। तीसरे का आंसर है बी, साइड अ लेक। चौथे का आंसर है सी, फ्लटरिंग एंड डांसिंग। पांचवें का आंसर है बी, आ स्टारी नाइट। छठे का आंसर है सी, टेंस ऑफ थाउजेंड्स। सातवें का आंसर है बी, लोनली। इसी तरीके से आठवें का आंसर सी, दे ब्रिंग हिम जॉय। और नावे का आंसर बी, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। और 10वां एमसीक्यू, आखिरी एमसीक्यू का आंसर है सी, एंड देन माय हार्ट विद प्लेजर फिल्स। इस तरीके से ये एमसीक्यूज भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। पेज नंबर 43 पे सवाल आपको नजर आ रहा है, यूज द गिवन कंपाउंड प्रपोजिशन टू क्रिएट योर ओन सेंटेंसेस। तो पहले बच्चों एक बात आपको वाजे कर दूं, क्लास 9 2025 में आपकी न्यू बुक आएगी इंग्लिश की, तो आपको यहाँ बहुत से सवाल ऐसे मिलेंगे ग्रामर के जो हमारे पंजाब बोर्ड से रिलेटेड नहीं होंगे। मैं इस वीडियो में बस वही सवाल सॉल्व कर रहा हूँ जो कि पंजाब बोर्ड्स में आते हैं। तो आपको कंपाउंड प्रपोजिशंस दिए गए हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट टू, ऑन बिहाफ ऑफ, ड्यू टू, इन एडिशन टू, इन स्पाइट ऑफ। तो आप इनको सेंटेंसेस में यूज करना। तो जैसे कि आपको अब नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके लिए सेंटेंसेस बना दिए, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट टू, ऑन बिहाफ ऑफ, ड्यू टू, इन एडिशन टू, इन स्पाइट ऑफ के। आप इन्हें नोट करना, बहुत इजी सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए हैं। इस तरीके से ये सवाल भी मैंने आपके लिए हल कर दिया है। पेज नंबर 45 पे प्यारे बच्चों आपका सवाल है, बी, यूज द गिवन prepositional phrases to create your own sentences। फिर से सेंटेंसेस का सवाल है, मगर इस बार prepositional phrases का है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, इन द मॉर्निंग विद अ स्माइल ऑन द रूफ, अंडर द बेड, आफ्टर द गेम। तो आप इनको सेंटेंसेस में यूज करना है। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये मैंने आपके लिए सेंटेंसेस बना दिए हैं, इन द मॉर्निंग विद द स्माइल ऑन द रूफ, अंडर द बेड, आफ्टर द गेम के। तो आप इसे नोट कर लें। इस तरीके से ये सवाल भी आपका हल हो गया है। क्लास 9 इंग्लिश 2025 की न्यू बुक आपका चैप्टर नंबर 3 डैफोडिल्स, इसका पेज नंबर 48 पे लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। पहले बच्चों, राइट एन ऑब्जेक्टिव समरी ऑफ पोएम डैफोडिल्स, इंक्लूड द मेन आइडिया, की इमेजरी एंड इमोशनल इंपैक्ट सीन हैज ऑन द पोएट, फोकस ऑन conveying the essence of the poem without including personal opinion or interpretations। तो प्यारे बच्चों, ये जो नज़म है डैफोडिल, इसका लास्ट क्वेश्चन आप इसे नोट कर लें। समरी मैंने आपको लिख दी है, बहुत ही आसान लिखी है, आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगी। William's poem Daffodils captures the beauty and emotional resonance of a simple natural scene. The poet describes a wandering alone when he suddenly comes across a vast field of golden daffodils beside a lake. The flowers fluttering and dancing in the breeze stretch endlessly like the stars in the Milky Way. Their lively movement outshines even the waves of the lake. Although the poet is initially unaware of its significance, the memory of this joyous scene stays with him. Later in moments of solitude or reflection, the vision of the daffodils fills his heart with pleasure and peace. The poem emphasizes the lasting emotional impact of nature's beauty and its ability to uplift the human spirit। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैंने क्लास 9 इंग्लिश 2025 की न्यू बुक, इसका चैप्टर नंबर 3 जो कि एक नज़म है डैफोडिल्स, इसके मैंने क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज के सवाल आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप आज की वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मुझे सर हसन शबीर को इजाजत दें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।